Do you face problem while solving questions related to forfeiture of shares? Do you have doubts in your mind with what amount do I need to debit share capital account? कितने amount से शेयर प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है और करना भी है या नहीं करना वो भी नहीं पता. शेयर फॉरफीचर अमाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है इन केस ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स. सो इन ऑर्डर टू हैव आंसर्स of all these questions, I have framed out one example and explained a stepwise process, and if you follow the same process, I can guarantee that you can solve any questions related to forfeiture of shares. Hi, my name is Rajesh Thakur, and in order to provide a better understanding and clarity related to issues which students face while solving questions related to forfeiture of shares, I have framed out this example so that it can help them out in their board exams, which is about to on 31st of March, I believe. So all the best, and do understand the process. In case of any query, you can write down to me and I'll happy to answer your questions. So let's begin. Okay, so let's start this question. XYZ issued 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share. The share pricing is rupees 7 on application, rupees 2 on allotment, and rupees 4 on first and final call. I have prepared once the share pricing breakup for yours just to understand how things move. So the total value of the shares on application is 7. The breakup of which is 6 rupees for share capital account and 1 rupees for share premium account, security premium account. On the allotment, there's a 2 rupees call of the total value, which includes rupees 1 for share capital and 1 for security premium. Same way for first and final call, 4 rupees will be demanded, and the breakup of which is 3 for share capital and 1 for security premium. So the total value which has been asked for is of the shares 13 rupees, and share capital is for 10 rupees, and premium is for 3 rupees. So the capital or share capital account is always with respect to face value of share. If I can write down over here, or the nominal value is always credited with the face value of share. So let's begin. This whole question I have divided into 4 sections. So in the first section we'll see the advance received on share application and unpaid amount on share allotment. And the second will do the first forfeiture of shares and the second forfeiture of shares, and then the last will look at how the reissue of shares has been done and what the amount shall be transferred in secured capital reserve account. So let's begin. So the first entry over here will be with respect to money received on application. So bank account, debit to share application account. Sorry, bank account debit to share application account. कितने शेयर की एप्लीकेशन आई है? 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है. तो 60,000 शेयर्स एप्लीकेशन का टोटल में कितना की डिमांड है? 7 रुपीस की. सो 4,20,000 शेयर एप्लीकेशन पे आए. अब यहां पर एक चीज गौर जरूर कीजिएगा कि शेयर एप्लीकेशन जो हमने क्रेडिट किया है उस फर्स्ट एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम तब तक क्रेडिट नहीं करते जब तक शेयर अलॉट हो नहीं जाते. शेयर अलॉटमेंट और अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप में डिफरेंस है. अलॉटमेंट का मतलब है व्हेन कंपनी डिसाइडेड हाउ मेनी शेयर्स विल बी अलॉटेड टू होम. लाइक ओवर हियर द कंपनी हैज मेंशन्ड दैट 30,000 शेयर जिसने अप्लाई किया उसे 25,000 शेयर मिलेंगे, 20,000 शेयर जिसने अप्लाई किए उन्हें 15,000 शेयर्स मिलेंगे, और 10,000 शेयर्स fully rejected. Okay, so let's prepare how much advance money has been received on share application and how much money has been rejected. So let's prepare over here our working note number 1. So shares applied, shares allotted, रिजेक्ट कितने करे कंपनी ने? रिजेक्ट को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिजेक्शन एंड प्रो राटा.
और प्रोराटा बेस पे कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट। सो जो एप्लीकेशन आई वो 60,000 शेयर्स की आई। कंपनी हैज इशूड 40,000 शेयर्स, सो दे कैन अलॉट ओनली 40,000 शेयर्स। इस क्वेश्चन में बोला है कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने फुली रिजेक्ट कर दिए और उनका पैसा वापस कर दिया। सो रिजेक्शन को हम यहाँ पर डाल देते हैं। सो कितना बचा? 50,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स एंड 10,000 शेयर। इट शोज दैट जिसने 50,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, अलॉट कंपनी ने कितने करे? 40,000 शेयर्स। सो द मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड on application that will be get adjusted in the further calls। तो कितना पैसा 40,000 allotted जो शेयर्स हैं उस पे कितना एडवांस रिसीव्ड हुआ कंपनी को? तो एप्लीकेशन पे 7 रुपए के हिसाब से कंपनी को पैसा मिला। 10,000 शेयर्स प्रोराटा बेस पे अलॉट किए, सो 7 के हिसाब से कंपनी हैज रिसीव्ड ₹70,000 एज एडवांस ऑन शेयर एप्लीकेशन। अब साथ में हम यहाँ देख लेते हैं कि कितना पैसा ड्यू है ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू करे हैं। अलॉटमेंट मनी है 2 रुपए के हिसाब से, तो 80,000 अलॉटमेंट पे पैसा कंपनी का आना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 70,000 जो एडवांस रिसीव्ड हुआ है दैट विल बी गेट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, क्योंकि 80,000 रुपए कंपनी विल कॉल फॉर अलॉटमेंट मनी। तो 70,000 फुल्ली विल गेट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अगर ये 70,000 की जगह 90,000 अलॉटमेंट एडवांस रिसीव होते शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर, तो 80,000 अलॉटमेंट से एडजस्टमेंट होता और जो बैलेंस बचता 10,000 रुपए दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट कॉल विच इज द फर्स्ट कॉल। ओके, बट यहाँ पर 70,000 ही आया है और जबकि अलॉटमेंट पे 80,000 रुपए आने हैं, तो 70,000 पूरा एडजस्ट हो गया ऑन दी अलॉटमेंट। सो नाउ लेट्स पास द एंट्री with respect to allocation of share application money. So just a sec. Okay, so share application account, share application एक intermediate account है just for the purpose of recording the transaction, क्योंकि finally we'll have to transfer the application money in the share capital account। तो to share capital account, शेयर कैपिटल कितने का है? 40,000 कंपनी ने शेयर्स अलॉट करे हैं और जैसा मैंने बताया शेयर कैपिटल इज credited with the nominal or face value of the share, जो कितना है विच इज 6 रुपीज। तो 6 रुपीज के हिसाब से कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितना होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन? 2,40,000। साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी आया है, तो वो कितना है? 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन में 1 रुपया प्रीमियम का मांगा गया है, तो 40,000 रुपीज हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। कंपनी ने यह भी बताया है कि उन्होंने रिटर्न कर दिया 10,000 शेयर्स पे जो पैसा आया, 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, उस पे शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे 7 रुपए का टोटल पैसा आया, तो 70,000 कंपनी ने पेमेंट वापस कर दी। अब जो बाकी पैसा एडवांस रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दैट विल गेट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट दैट इज 70,000 रुपीज। तो टोटल हो गया 4,20,000। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव to the next entry. So the next entry will be allotment money। तो कंपनी अब allotment money कॉल करेगी। सो बीइंग accrual entries होती हैं, इसलिए जब कंपनी का allotment ड्यू हुआ तो कंपनी ने allotment money कॉल करी, तो शेयर allotment account डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रिएट किया, वो इसलिए क्योंकि नाउ कंपनी हैज ऑलरेडी अलॉटेड द शेयर विच इज एंड हाउ द अलॉटमेंट हैज बीन डन दैट इज क्लियर फ्रॉम हेयर एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर आल्सो, राइट, द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट 40,000 शेयर्स की है। अलॉटमेंट पे पैसा कितना आना है? 2 रुपए के हिसाब से आना है, तो 80,000 रुपए अलॉटमेंट के कंपनी ने
कॉल करे हैं, जिसमें शेयर कैपिटल का कितना है, क्योंकि 2 रुपये में से 1 रुपया शेयर कैपिटल के लिए है और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए है। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 40,000 से और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ 40,000 से। Now our next question comes to how much money do we receive or have we received, the company has received on allotment of shares. So bank account debit, क्योंकि पैसा आना है, बैंक असेट है, असेट इंक्रीज डेबिट साइड में होती है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया। अब कितना पैसा अलॉटमेंट पे आना है, कितना पैसा अलॉटमेंट पे आना है, ये यहाँ पर कंपनी ने हमें बता रखा है कि 80,000 रुपीज अलॉटमेंट पे आने हैं। ओके, सो नाउ 80,000 रुपीज अलॉटमेंट पे आने हैं। ऑलरेडी कितने आ गए, 70,000 रुपये अलॉटमेंट के ऑलरेडी आ चुके हैं, विच इज क्लियर फ्रॉम हेयर। पर अब कंपनी ने यह बताया कि एक शेयर होल्डर जिसने 1200 शेयर अलॉट हुए, अमित जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, उसको 1200 शेयर अलॉट हुए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड इज शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पैसा अमित ने दिया नहीं। तो हाउ मच अनपेड मनी अमित हैज ऑन अलॉटमेंट, that we calculate. So our second working note will be unpaid amount on allotment of 1200 shares to Amit. Okay, so let's see अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है अमित का। 1200 शेयर अलॉट हुए हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट पे देने थे, तो 2400 रुपया अमित को अलॉटमेंट पे देना था। पर इसके अगेंस्ट में कितना एडवांस रिसीव्ड हुआ है ऑन एप्लीकेशन, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, कैटेगरी 1 से अमित बिलोंग करता है। कैटेगरी 1 में अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, 30,000, और अलॉट कितने करें, 25,000। तो प्रोराटा बेस पे कितने शेयर्स अलॉट करें कंपनी ने, 5,000। सो हाउ मच एक्सेस अमाउंट और एडवांस कंपनी हैज रिसीव्ड at the time of application on this 5,000 shares is 35,000 rupees. Okay, so now we can calculate how much advance Amit has paid on application in category 1, जिसने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सॉरी अलॉट किए थे जिसको 25,000 शेयर, तो advance money is received 35,000. So 25,000, just a sec. So 25,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो एडवांस रिसीव कितने, 35,000। Why this is going on this way? Just a sec. So 35,000 received advance on 25,000 shares allot. तो 1200 अलॉट जो अमित को हुआ उस पर कितना एडवांस आया, सो इट दिस कम्स टू 1680. वी कैन कैलकुलेट even 35,000 divided by 25,000 into 1200, so 1680. तो कितना एडवांस रिसीव्ड हुआ, 1680। तो अनपेड amount on allotment will be 2400 minus 1680. This comes to 720. Okay, so now we can pass on our entry that 80,000 अलॉटमेंट पे पैसा आना था, 70,000 ऑलरेडी एडवांस आ गया एप्लीकेशन का, और अमित जो एक शेयर होल्डर था जिसको 1200 शेयर अलॉट हुए,
उसने 720 अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो ये कितना आता है? 80 minus 70, 10,000, 10,000 minus 720, that comes to 9280. So company has received 9280 after adjusting the advance of 70,000 received with application. Now let's come to our next entry. कंपनी ने ये बोला है कि 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी अमित ने नहीं दी और आफ्टर अलॉटमेंट उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अब जब फॉरफीचर होता है, दिस इज नाउ मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स फेल और फाइंड देमसेल्व्स इन अ प्रॉब्लम कि कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में जाए, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है नहीं करना, फॉरफीचर में कितना जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि किस हिसाब से हमें क्या चीज़ एनालाइज करनी है और कितना एनालाइज करनी है। So first for feature, now we start with the first for feature, the second section of this question which I have categorized. तो in this let's see first for feature में कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यू कितना था अमित का, 2400 रुपये अलॉटमेंट का, पर इसके दो पार्ट हैं। 1200 रुपये कैपिटल के लिए हैं 1 रुपए के हिसाब से, और 1200 रुपये 1 रुपये फॉर 2 रुपीज इज द टोटल अलॉटमेंट मनी, उसमें 1 रुपीज फॉर शेयर कैपिटल एंड 1 रुपीज फॉर प्रीमियम। सो दिस इज 1 रुपीज फॉर प्रीमियम। नाउ वी कैन सी टोटल अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अमित इज 1680। तो हम देख सकते हैं कि 1680 ऑलरेडी एडवांस आया हुआ है, तो उसमें से सबसे पहले हम कौन सा पैसा एडजस्ट करेंगे? शेयर कैपिटल का। तो इसका मतलब 1200 रुपये हमने जो एडवांस आया हुआ है अमित का एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा एडजस्ट कर लिया। आफ्टर एडजस्टिंग शेयर कैपिटल मनी ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम 1680, बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 480। ओके, सो दिस 480 इज द अमाउंट विच हैज रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टिंग 1200 रुपये ऑन अलॉटमेंट कैपिटल। तो कितना अमाउंट बचा? 720। तो अमित का जो अलॉटमेंट में 2400 रुपये ड्यू था, जिसके दो पार्ट हैं, वन इज फॉर शेयर कैपिटल दैट इज 1200 रुपीज एंड द अदर इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज 1200 रुपीज। 1680 रुपये एडवांस आए थे, उसमें से 1200 शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट के, और 480 जो बचे वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिए। तो कितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं आया? 720। तो अब वी कैन सी कि हमें क्या एंट्री करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि जब फॉरफीचर होता है उस टाइम पे जितने भी अकाउंट्स खुले होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट शेयर होल्डर, वी नीड टू क्लोज दैट अकाउंट, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था अमित से रिलेटेड। तो कौन कौन से शेयर फॉरफीचर से पहले किस किस टाइम के भाई हमने कौन कौन सी डिमांड की थी? हमने उससे फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट उसका क्रेडिट किया था। ओके, और फिर अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट्स का क्रेडिट किया था, और उसके बाद शेयर फॉरफिट कर लिए। इसलिए दो ही शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जो अमित का हुआ वो दो ही उसमें हुआ, वन इज फॉर एप्लीकेशन एंड अदर इज फॉर अलॉटमेंट। एंड एज मेंशन, शेयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट विद द नॉमिनल फेस वैल्यू। तो कितना फेस वैल्यू क्रेडिट किया था हमने? 6 रुपये हमने क्रेडिट किया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन and 1 rupees at the time of allotment. So the total 7 rupees we have credited Amit with respect to 1200 शेयर। तो 7 रुपए के हिसाब से 8400 हम डेबिट कर देंगे। अब क्योंकि हमने जैसे देखा कि 720 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं आया है, out of 1200 480 has been received and 720 has not been received, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट किया था हमने उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर हमने सिक्योरिटी, जस्ट अ सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
डेबिट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनपेड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विच इज 720। सो आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी डेबिट किया था, तो उसको क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, कितना पैसा शेयर अलॉटमेंट का नहीं आया है अमित के केस में, दैट वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर 720 विच इज अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो 720 रुपीज शेयर अलॉटमेंट पे नहीं आया है। और जो पैसा रिसीव हो चुका है अमित से वो फॉरफिट किया जाएगा, तो वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चला जाएगा। वैसे ये बैलेंसिंग नंबर होता है which will be 8400, but to make you more clarity on this how this has been calculated, we can check it also. So let's see, I'm doing over here just for a clarity purpose कि कितना पैसा अमित का हमने जब्त किया है। अब हमने अमित का जो पैसा जब्त किया है अगर हम देखें तो उसने हमारा शेयर एप्लीकेशन पे 1200 शेयर अलॉट हुए, 6 रुपये क्योंकि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में आप ध्यान रखें, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा आ जाता है दैट्स गेट ब्लॉक, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो भी पैसा तो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ए कंपनी इज नॉट फ्री टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम मनी, देयर इज ओनली अ फ्यू कंडीशंस, देयर अबाउट एज पर कंपनीज एक्ट सिर्फ 5 कंडीशन है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। इसलिए इसलिए मैंने बोला जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा उस अकाउंट में चला गया दैट इज नॉट बीन यूज। तो यहाँ शेयर फॉर फीचर में हमारे पास हम सिर्फ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर का पैसा जब्त कर रख सकते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 7200 आए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा आया होगा, क्योंकि जैसे हमने देखा 1680 एडवांस रिसीव्ड हुआ था, 1680 एडवांस रिसीव्ड हुआ था और जिसमें से 1200 रुपये कैपिटल के एडजस्ट कर लिए, तो कैपिटल अलॉटमेंट के टाइम पे जो शेयर कैपिटल का पैसा था वो भी आ गया। तो 1200 इंटू 1 इज इक्वल टू 1200। सो दिस इज हाउ वी चेक। सो वी कैन सी 8400 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर का हमारे पास पैसा जो हमने जब्त किया वो ये है, उसकी कैलकुलेशन ये है। दिस इज ए बैलेंसिंग नंबर बट वी कैन काउंटर चेक बाय दिस एक्सरसाइज कि कितना पैसा वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डिमांड करी। तो एज ए ड्यू की एंट्री जैसे हमने अलॉटमेंट के टाइम पे की थी वैसे ही हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करेंगे। तो एंट्री ड्यू है क्योंकि डेबिट हम करेंगे क्योंकि हमारे पैसा कॉल किया है। This is a kind of debtors which we gonna, the name of this is first and final call, so that's why we have debited it as assets debit on the increase on the debit side to share capital account to security premium account। अब यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी पैसा डिमांड करेगी। कंपनी के पास टोटल 40,000 शेयर्स थे, पर 1200 शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, तो उनसे तो पैसा डिमांड करेंगे नहीं, तो जो रिमेनिंग बचा उससे पैसा डिमांड करेंगे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपये की। तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो 40,000 माइनस 1200 शेयर्स विच हैज बीन फॉरफिटेड, सो रिमेनिंग इज 38,800 शेयर। ओके, 38,800 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से द टोटल मनी कंपनी हैज डिमांडेड इज 1,55,200। इसमें शेयर कैपिटल का कितना है 3 रुपये के हिसाब से आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है 1 रुपये के हिसाब से आएगा। सो हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पर 38,800 आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, और 38,800 इंटू 3 दैट कम्स टू 1,16,400। This will be the money received for share capital. Now let's see how much money is received. So bank account debit, अब कितना पैसा आना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, दैट इज 1,55,200। ओके,
which is here. अब क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज अनदर शेयर होल्डर राम राम इज अनदर शेयर होल्डर जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है। 1000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो राम ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। सो इस सेक्शन का नेक्स्ट हम करते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट, सेकंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। So that will become our note number, working note number 3. So let's do it. Same way, Ram belongs to category 2. Category 2 में शेयर्स अप्लाइड कितने करें और अलॉट कितने करें और प्रोराटा बेस पे कितने। ओके, अब क्योंकि राम के केस में हमें बोला है उसने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी। ओके, तो अप्लाइड जो किया था in case of second category, that is, just a second, I'll just go through and mention you that 20,000 shares applied with your 15,000 shares has been allotted. Okay, so let's go and write it down. Share applied for 25,000, allot 15,000. Okay, I think I'm just forgetting the number. It's not 25,000, it's 30,000. It's 20,000. So 20,000 shares applied for, allotted 15,000, pro rata basis पे 5,000। पर क्योंकि उसने पेमेंट फर्स्ट कॉल की करी ही नहीं है, तो और एज वी नो द एक्सेस मनी विच वी हैव रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो सारा का सारा एडजस्ट अलॉटमेंट पे हो गया। तो कोई ऐसा पैसा नहीं है एडवांस का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्टमेंट हुई है। सो देयरफॉर like what we had done in case of Amit, that how much money has been, over here. If you see this, why it's not working. Yeah, so that is not required because he has not paid the first and final call. But we need to see how much shares has been allotted to Ram. तो जिसने सेकंड कैटेगरी में 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉट हुए 15,000 शेयर्स। राम इज अप्लाइड फॉर 1,000 shares. Okay, so how much shares has been allotted to him, that we can compute based on this equation. So x will be 1,000 into 15,000 divided by 20,000. So if we solve this equation, so this will show 15,000 divided by 20, 750. सो राम को कितने शेयर्स अलॉट हुए? 750। 750 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए देना था उसको? 4 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 3,000 शेयर्स राम हैज टू पे, विच ही हैज नॉट पेड। सो कितना पैसा आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 1,52,200। टोटल आना था 1,55,200 over here, out of which 3,000 has not been paid on first call by Ram. So the net amount which company has received on first and final call is 1,52,200 to first and final call.
1,55,52,000. Just a sec. 1,52,200. ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि राम के शेयर्स फॉरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट कॉल. So same, now we gonna pass the entry of forfeiture, second forfeiture. कितना आएगा सेकंड फॉरफीचर में? सो वी कैन सी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. राम को शेयर्स अलॉट कितने हुए? 750. कितना तक फेस वैल्यू डिमांड हो चुकी है? फर्स्ट कॉल अगर हम देखें एप्लीकेशन भी डिमांड कर ली थी, सेकंड अलॉटमेंट भी डिमांड कर ली थी, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो ऑल द कॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द नॉमिनल वैल्यू विच इज 10 रुपीज हैज बीन कॉल्ड अप. तो शेयर कैपिटल अकाउंट राम के केस में 7,500 रुपये से ऑलरेडी क्रेडिट कंपनी ने किया हुआ है, जो कि नाउ विल डेबिट. नाउ कम टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर हम देखें सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा दिया नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम में राम ने कितना पैसा नहीं दिया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आना था सिक्योरिटी प्रीमियम का, विच इज 1 रुपीज, राइट. तो 750 इज द अमाउंट राम हैज नॉट पेड फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वी कैन सी कि राम का कितना पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आया हुआ है और कितना पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं आया. तो अगर हम देखेंगे तो राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो दी ही नहीं है. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने जब डेबिट की थी वो कितने अमाउंट से डेबिट की थी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने डेबिट की थी 4 रुपीज के हिसाब से. तो 4 रुपीज के हिसाब से राम हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विच कम्स टू रुपीज 3,000. जो बैलेंस बचा दैट विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट. जैसे मैंने बताया कि दिस इज द बैलेंसिंग नंबर. तो 7,500 प्लस 750 माइनस 3,000, दिस कम्स टू 5250. तो इतना अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे फॉरफिट किया. अगर हमें ये देखना है, जैसे हमने यहाँ चेक किया था कि फॉरफीचर का 8400 आया, तो अगर मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी देखना है, राम के केस में अगर देखना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लेट्स सी. राम के कितने शेयर्स अलॉट हो रखे हैं? 750. ओके, उसने कितना पैसा दिया हुआ है? उसने 6 रुपये, ब्रैकेट में कर लेते हैं, 6 रुपये उसने हमें दिया एप्लीकेशन के टाइम पर. मैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स की बात कर रहा हूँ. जैसे मैंने बताया फॉरफीचर में भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आ जाता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट रहता है और उसका रेस्ट्रिक्शन, उसका यूसेज रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है. सो 6 रुपये उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दिए, 1 रुपया उसने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया, फर्स्ट कॉल उसने दिया नहीं. सो हाउ मच मनी वी हैव रिसीव फ्रॉम राम? 7 रुपीज. So if we multiply this number, it comes to 5250. So this is how we have done the counter checking with respect to forfeiture account. Now we come to the last part of this, which is reissue of forfeited shares. Okay, so now we move for the reissue. So we'll prepare our fourth note, which is reissue of for just a sec, reissue of forfeited शेयर्स. कंपनी ने यहां बताया है कि आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड 1500 शेयर्स रीइशूड किए एट ₹8 पर शेयर, जिसमें जो राम को शेयर्स इशू किए थे वो सारे के सारे इंक्लूडेड है. ओके, तो अब हम
देखते हैं कि how is the bifurcation goes. Okay, so let's see how the bifurcation goes. राम को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? दैट वी हैड चेक्ड कि राम को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। यहाँ पर निकाला हुआ है राम ने 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी और 750 शेयर्स राम को अलॉट हुए थे। ओके, तो राम री इश्यू शेयर्स। Okay, I just write down Ram a little lower so that it's more clear. तो राम को 750 शेयर इशू हुए थे और उसके सारे शेयर्स रीइशू कर दिए। अब हमें देखना है कि अमित ये टोटल जो शेयर रीइशू हुए 1500 हुए, एग्जाम इलस्ट्रेशन में दिए, तो रिमेनिंग 750 शेयर्स विल बी इशूड फ्रॉम अमित अकाउंट। नाउ वी नीड टू लुक एट ये रीइशू करें कंपनी ने, वो कितने से करें? 8 रुपए के हिसाब से कंपनी ने ये शेयर्स को रीइशू किया, ₹8 पर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 रुपए डिस्काउंट के कंपनी ने दिए। सो लेट्स पास द एंट्री व्हेन द शेयर्स आर रीइशूड। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर रीइशू करें? 1500। 8 रुपए के हिसाब से रीइशू करें, दिस विल बिकम 12,000। अब क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू है जस्ट अ सेक, क्योंकि शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए और दैट हैज बीन रीइशूड 8 रुपीज, तो 2 रुपए का इसके अंदर डिस्काउंट दिया। तो 2 रुपए जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, दैट्स अ लॉस टू द कंपनी। So the loss is increased on the debit side. That's why we have debit discount on issue of shares. कितने रुपए से? 3000 से। As I mentioned, share capital always get credit or debit with the nominal value or the face value of the shares. तो कितना है? 1500 रुपए का, 1500 सॉरी शेयर्स हैं, 10 रुपए का फेस वैल्यू है शेयर की, तो 15,000। क्लियर? Now come the last part. How much money needs to be transferred from share forfeiture account debit to capital reserve account? This इसकी कैलकुलेशन के लिए व्हाट वी डू, हम देखते हैं कि कितना फॉरफीचर हमने अमाउंट किया था और उस फॉरफीचर अमाउंट में से कितना कंपनी ने रीइशू कर दिया। तो राम के सारे शेयर्स रीइशू कर दिए, तो कंपनी ने कितना फॉरफिट किया था? अमाउंट फॉरफिटेड राम के केस में, दैट कैन बी सीन फ्रॉम हेयर। राम के केस में कंपनी ने जो अमाउंट फॉरफिट किया था, दैट इज 5250। So we can write down over here amount forfeited 5250। अब अमित के केस में कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? दैट इज क्लियर फ्रॉम हेयर, 8400। बट दिस 8400 is not on 750 shares, this is on 1200 shares. So अगर 8400 is the amount forfeited on 1200 shares, तो 750 पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया कंपनी ने? बिकॉज ओनली 750 शेयर्स फ्रॉम दी अमित, आउट ऑफ 1200 शेयर्स अमित का जो फॉरफिट हुआ है, इसमें से 750 शेयर्स ही इशू हुए हैं, रीइशू हैं। तो इसलिए तो कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जितना रीइशू किए हैं उन शेयर्स में, और जितना एक्सेस मनी कंपनी ने जो सेव फॉरफिट किया है वो कंपनी के पास बचा रहा है, दैट विल बी ट्रांसफर टू फॉरफिट कैपिटल रिजर्व। जितना शेयर्स रीइशू नहीं हुए, दैट विल रिमेन इन दी फॉरफिटेड अकाउंट। ओके, सो
इस पे अगर हम if we check, so this comes to 5250. So 5250 we have write down over here. Okay. Now we need to check कंपनी ने डिस्काउंट दिया है. ओके, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है कंपनी ने ऑन दीज शेयर्स. ओके, जो लॉस है, अगर हम देखें कि एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. आपने किसी से 100 रुपए लेने हैं और उसने आपको 40 रुपए देने हैं. तो आपने उसे 100 रुपए लेने हैं और उसने आपने उसको 40 रुपए देने हैं, तो वो सीधा सीधा आपको क्या देगा? पहले 100 रुपए देगा, फिर आप उसे 40 रुपए दोगे, या आप सीधा सीधा वो आपको 100 - 40 60 रुपीज आपको वो पे कर देगा. ओके, तो जिस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, जिस भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है वो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं. तो उसी में आप देखते हैं कि ये जो शेयर्स हैं हमने री इशू किए हैं. अब इस री इशू के केस में हमने ऑलरेडी कुछ पैसा फॉरफिट करके रखा हुआ है, बराबर. तो जितना पैसा हमने फॉरफिट करके रखा हुआ है, हम उसमें से ये जो डिस्काउंट जो हमने दिया वो एडजस्ट कर लेंगे. तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को हम एडजस्ट करते हैं किससे? जो हमने शेयर फॉरफिट करें. तो हम क्या करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड. ओके, कितना था? 3000. तो 3000 हमने एडजस्ट कर दिया. इस एंट्री को अगर हम देखें तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स यहाँ कट जाता है. तो वी कैन आल्सो राइट डाउन स्ट्रेट अवे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Either we can do these two entries 9 and 11, or we can do one entry. So instead of this discount on issue of shares, we can straight away write share forfeiture account debit. Clear? Now let's see how much money has been transferred to capital reserve. Okay, 5250 is the share forfeited जो कंपनी ने रीइशू शेयर्स किए हैं. राम के केस में, अमित के केस में भी 750 कंपनी ने रीइशू किए हैं. तो कंपनी के पास कितना पैसा ऑलरेडी फॉरफिटेड है? 750 पे 5250. ओके, अब इसमें से डिस्काउंट एडजस्ट किया है 3000 का. कंपनी ने यहाँ पर दिखाया हुआ है 2 रुपए के हिसाब से 1500 पे 3000 का डिस्काउंट दिया, क्योंकि 8 रुपए पे रीइशू किया, 2 रुपए ऐसे डिस्काउंट दिया. तो ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर अलॉटमेंट, तो दिस 3000 विल आल्सो गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम रेशियो विच इज 1:1. सो 1500 will be adjusted from Ram's share forfeited account and 1500 will be adjusted from Amit's share forfeited account. तो कितना पैसा बचा? जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उसको हमने जब रीइशू किया, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, वो एडजस्ट करने के बाद जो भी पैसा कंपनी के पास बचा, नाउ दीज शेयर्स हैव बीन अलॉटेड रीइशूड अगेन. सो जितना पैसा बचा दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो अगर इफ वी कैलकुलेट 5250 minus 1500, this comes to 3750. Same in case of Amit, 3750. So this total comes to 7500. So the money which will be transferred to capital reserve will be 7500. So this is the whole question with respect to share forfeiture. I hope you understood the questions well, and the link to the illustration has been given in the description from where you can download it. In case of any queries do you have, you can write down and comment me. Also, you can subscribe and press the bell icon so that any further notification or new videos can be reached to you in time. In this question, I have written down discount on issue of shares.
So kindly take that as discount on reissue of shares. That's it from my side, and I wish you all the best and hope that all the queries which I have explained or I have raised at the starting of the video is now solved, and you could now be in a better position to solve any of the questions. Still, if you have any doubts, I am happy to answer. Thank you. Take care. Bye bye.